সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে ইউনিফাইড পেন্সন স্কিম UPS ঘোষণা কৰা হৈছে। UPS কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে কি থাকিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোতে আলোচনা কৰিম। UPS পেন্সন নীতি 2025 চনৰ এপ্ৰিল মাহত কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। যদি কাৰ্যকৰী হয় তেতিয়াহ'লে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী 23 লাখ উপকৃত হ'ব পাৰে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। ইয়াৰে সুবিধা লাভ কৰিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে গ্ৰহণ কৰে যদি তেতিয়াহ'লে 50 লাখ ইউনিফাইড পেন্সন স্কিম UPSৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। ইউনিফাইড পেন্সন স্কিম UPS ইয়াৰ কেইটামান পইণ্টছ আলোচনা কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। যদি কোনোবা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁৰ কাৰ্যকাল 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰে আৰু তেওঁৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হয়, চাকৰি কৰা শেষৰ 12 মাহত যি চেলাৰী পায় তাৰ বেছিক পে'ৰ ওপৰত টোটেল 50% পেন্সন হিচাপে তেওঁ লাভ কৰিব বেছিক পে'ৰ ওপৰত। 2 নম্বৰত কোনোবা কৰ্মচাৰীয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ উপৰোক্ত 1 নং পইণ্টৰ কৰ্মচাৰী যদি হয় আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ফেমিলিয়ে তেওঁৰ পেন্সন পোৱা পইচাৰ 60% পেন্সন লাভ কৰিব। 3 নম্বৰ কোনো এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে মিনিমাম 10 বছৰ চাকৰি কৰে বা চাকৰিটো শেষ হৈ যায় তেওঁৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিশ্চিত হ'ব যে 10,000 টকাৰ এটা পেন্সন লাভ কৰিব। UPS আৰু NPS দুয়োটাই যাৰ ইচ্ছা সেইটোত থাকিব পাৰিব, ইয়াত কোনো দৰাবন্ধাৰ নিয়ম নাই। NPS ছিষ্টেমত এমপ্লয়ী আৰু চৰকাৰ দুয়োৱে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে। চৰকাৰে UPSত 18% কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিব বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু 10 বছৰ মূৰে বিবেচনা কৰা হ'ব। OPS ছিষ্টেমটো আপোনালোকে জানেই, সেইকাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা নকৰোঁ। এই উপৰোক্ত তিনিওটা বেলেগ পৃথক, ইয়াৰ কোনোটাৰ লগত মিল নাই। ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে NPSত আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে UPS ছিষ্টেমত মুভ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া থাকিব। ভাৰত চৰকাৰৰ মতে 90% কৰ্মচাৰীসকলক উপকৃত কৰিব এই UPS ছিষ্টেমে। 2004 চনৰ পিছত যিবিলাক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ৰিটায়াৰমেণ্ট কৰিছে, তেওঁলোক NPS ছিষ্টেমলৈ ৰিটায়াৰমেণ্ট কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে চৰকাৰে UPS ছিষ্টেমত আহিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে আৰু এনেকুৱা সময়ত এৰিয়াৰ আৰু যিবিলাক তেওঁলোকে সুদ পাব সেইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰা হ'ব এৰিয়াৰ হিচাপে। সদৌ শেষত ক'ব বিচাৰিছোঁ উপৰোক্ত বিষয়সমূহ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত কিবা বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব। আৰু UPSৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে বক্তব্য কৰা যিটো বক্তব্য আছিল সেইটো আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। আহা আজিৰ এই ভিডিঅ'টো विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए जो बहुत लॉजिकल और वाजिब 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस UPS का सबसे पहला फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ। वो इसमें UPS में थर्ड पिलर ऑप्शन रहेगा। कोई अगर NPS में रहना चाहे तो NPS में रह सकता है, UPS में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस UPS का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है
that will be the average of basic pay of 12 months before superannuation, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा, स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़ के करेंगे तो अगर डीएनएस रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलेगी तो वो आज की तारीख में होते होते करीब करीब 15,000 रुपए पर मंथ हो जाती है, विच इज अ सब्सटैंशियल रिलीफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेंशन सिस्टम। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डीआर, डीए की जगह डीआर, डीएनएस रिलीफ। पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी। जब सुपर एन्युएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए, तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए ये लंप सम एक अमाउंट तय किया गया। यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली इमोल्यूमेंट्स, विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। तो ये एक अपने आप में सब्सटैंशियल एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी, सोमनाथन साहब दैट्स करेक्ट ना, करीब करीब 6, तो उसको 6 महीने की इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के, वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। ये 5 पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे, विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है।